नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 9 और साथ में हम डिस्कस करेंगे 16 से 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सेशन जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जबकि बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का बिना वक्त गवाए सेशन। चलिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स, answer is gross national product minus depreciation. Okay, the formula of net national equals to gross national product minus depreciation. Next is real national income measures. Answer is nominal national income adjusted for inflation. Okay, real national income measures nominal national income adjusted for inflation. Next question is the average income of the country is, answer is per capita income. Per capita income is known as the average income of a country. Next question number 4, net national product at factor cost is also known as, answer is national income. net national product at factor cost, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होती है फैक्टर कॉस्ट पे क्या मानी जाती है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in India the national income is measured on the basis of, answer flow of goods only, yes. Number of employed youth only, yes. Volume of tax collected per annum, yes. Earning of people working in PSU and government jobs, yes. Answer is all of the above. Next question is consider the following statement. The first attempt to calculate national income of India was made by Dadabhai Naoroji. Answer is yes. The first scientific method to calculate national income of India was made by Professor V.K.R.V. Rao. Yes, answer is both 1 and 2. Next question. The main source of the national income of India is, answer is service sector. ठीक है, मेन सोर्स क्या है नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का सर्विस सेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी मेजर्स अ कंट्रीज इनकम. जीडीपी क्या बताती है, हमारे देश की इनकम बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजस्ट GDP from market price to factor cost, answer deduct indirect taxes and add subsidies. यदि हमें GDP कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा, सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेटिंग GDP इन इंडिया. आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिकल and program implementation. Next question is the largest share of gross domestic product in India comes from, answer is service sector. अगला सवाल, the basis year method of calculating real GDP compared, answer is quantity product produced in different years using price from a year chosen as a reference period. Next question is intermediate goods are excluded from GDP because their inclusion would involve double counting. Their inclusion would involve in double counting. Next question, GNP stands for gross national product. Gross national products. Next question, gross national product equals, answer is gross domestic product plus net property income from abroad. ठीक है, अगला सवाल है आपका, टू एडजस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आंसर इज एड डेप्रिसिएशन. आंसर इज एड डेप्रिसिएशन. अगला सवाल है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. आंसर इज tertiary sector. Next question, when depreciation is deducted from the GNP the net value is, answer is net national product. क्या है आंसर, net national product. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर गेव द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच? निर्मला सीतारमन। आपका आंसर क्या है? निर्मला सीतारमन ने सबसे बड़ी बजट स्पीच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनियन बजट 2020-21 फॉर द बेटरमेंट ऑफ मार्केट एंड एक्सपोर्ट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस? आंसर इज वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। आंसर क्या है? वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, which of the following online portal will be launched to strengthen the national organic product market for measurement of organic, natural and integrated farming? आंसर इज जैविक खेती पोर्टल। आंसर क्या है? जैविक खेती पोर्टल। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्रोमिनेंट थीम्स एस्पायरेशनल इंडिया फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द यूनियन बजट 2020-21? आंसर इज better standards of living, access to health, education, better jobs. Okay, answer है all of these. Next question, what is the motto of the prominent theme economic development for all इन यूनियन बजट 2020-21? अब देखिए इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, द प्रोमिनेंट थीम थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। कितना? बस इतना याद रखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या था? आंसर इज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइन बाय द थ्री थीम्स ऑफ यूनियन बजट? आंसर इज ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग component is not the part of the aspirational India themes of the यूनियन बजट 2020-21? इनमें से कौन सी एस्पायरेशनल इंडिया के तहत थीम नहीं थी? तो आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर 16 एक्शन पॉइंट of the agriculture, irrigation, rural development in union budget 2020-21? आंसर इज 2.83 लाख करोड़। ठीक है, 2.83 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनियन बजट 2021 पीएम कुसुम टू बी एक्सपांडेड फॉर सोलर पंप्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम कुसुम? आंसर इज प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना। अगला सवाल है, हाउ मच फंड इज अलोकेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इन यूनियन बजट 2020-21? आंसर इज 1.23 लाख करोड़। 1.23 लाख करोड़ दिया जाएगा किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर द ईयर 2020-21 इन यूनियन बजट? आंसर इज 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट है। नेक्स्ट, पीएम किसान बेनिफिशियरी टू बी कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? आंसर इज केसीसी स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? पीएम किसान बेनिफिशियरीज को कवर किया जाएगा। आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंडर विलेज स्टोरेज स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू रीगेन देयर पोजीशन धन लक्ष्मी। कौन सा? धन्य लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स टू बी इंटीग्रेटेड विद? आंसर इज ई नाम। ठीक है, ENWR यानी कि नेगोशिएटेड वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स को ई नाम के साथ क्या करा जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इन यूनियन बजट 2021 अंडर द ब्लू इकोनॉमी 1 लाख करोड़ फिशरीज एक्सपोर्ट टू बी अचीव्ड बाय 2024-25 तक। ठीक है, 1 लाख करोड़ का फिश का एक्सपोर्ट करना है हमें, बाहर भेजना है। ठीक है, तो कब तक टारगेट अचीव करना है? 2024-25 तक। ठीक है, इन यूनियन बजट 2021 अंडर द ब्लू इकोनॉमी 20 लाख टन फिश प्रोडक्शन टारगेटेड बाय? आंसर इज 2020 to 2023. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द लाइफ स्टॉक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टू बी इंक्रीज फ्रॉम 30% to 70%। ठीक है, लाइफ स्टॉक में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कितना इंक्रीज करना है? 30 से बढ़ाकर 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2020-21 हाउ मच फंड अलोकेट फॉर हेल्थ सेक्टर? 69,000 करोड़। कितना? 69,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2020-21 टू बिल्ड अ सीमलेस नेशनल कोड सप्लाई चेन फॉर परशेबल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू द परशेबल गुड्स? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, मिल्क, मीट और फिश जैसे प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scheme has been launched in collaboration with the Ministry of Civil Aviation to help farmer transport grain
एंड प्रोडक्ट बाय एयर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट? आंसर इज कृषि उड़ान। आंसर इज कृषि उड़ान। तो दोस्तों ये थे हमारे 311 से लेकर 350 तक के आज के नेशनल इनकम बजट पर आधारित सवाल जो था बैंकिंग गवर्नेंस से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर। ये रही पहली न्यूज़। वर्ल्ड फूड डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अक्टूबर 2020। वर्ल्ड फूड डे मनाया गया कब? 16 अक्टूबर 2020 को। ये 75वीं एनिवर्सरी थी वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अवसर पर वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम थी इस साल की ग्रो नॉरिशिंग सस्टेन टूगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला सवाल है आपका, इंडिया डेजिग्नेट वाइस चेयर ऑफ GLP वर्किंग ग्रुप ऑफ OECD। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द वाइस चेयर ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्किंग ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, भारत को गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्किंग ग्रुप OECD का जो है उसके लिए वाइस चेयरमैन चुना गया है। इसके लिए डॉक्टर एकता कपूर को का नाम नामांकित किया गया है वाइस चेयरमैन के लिए। कब? 2021 और 22 के लिए। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन बनाया गया है OECD में GLP वर्किंग ग्रुप का भारत की तरफ से? तो आंसर याद रखना है डॉक्टर एकता कपूर। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस टू एस्टैब्लिश वुमेन हेल्प डेस्क इन ऑल पुलिस स्टेशन। यूपी सरकार ने अनाउंस करा है कि वो हर एक पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क की स्थापित करेगी। ठीक है, इसके पहले बिजली चोरी के लिए भी अलग स्टेशन बनाने की घोषणा की जा चुकी है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 5,718 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार ने 5,718 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ठीक है, कितने 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा ये एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा में। कितने 6 राज्यों को कवर किया जाएगा। ऑड 1 के तहत ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछा जा सकता है स्टार्स के तहत। तो आपको पूरा फिगर याद रखना है 5,718 करोड़। और स्टार्स प्रोजेक्ट की देखरेख कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इंडियाज़ फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया पास्ट अवे। भानु अथैया का निधन हो चुका है। वो भारत के पहले ऑस्कर विनर थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे। ठीक है, भानु अथैया का निधन हो गया। वो कौन थे? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे। एशियाज़ लॉन्गेस्ट जोजिला टनल इन लद्दाख वर्क्स इनिशिएट। जोजिला टनल का निर्माण शुरू हो चुका है जो कि एशिया की सबसे लंबी टनल है। ठीक है, जोजिला टनल इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 300 मीटर्स इन पीर पंजाल माउंटेन रेंज। पीर पंजाल माउंटेन रेंज पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इट विल हैव बाई डायरेक्शनल 2 लेन विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स। आप 80 किलोमीटर तक की गाड़ी यहाँ पर चला पाएंगे और 2 लेन होगी इसमें। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च कपिला कलाम प्रोग्राम। ठीक है, कपिला कलाम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर कौन? डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी की ओर से। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक भी मनाया जा रहा है 25 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। क्वेश्चन यही आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया गया? तो याद रखना है आपको 25 से लेकर 23 अक्टूबर तक। ठीक है, कैबिनेट अनाउंस स्पेशल पैकेज ₹520 करोड़ फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवहुड मिशन के तहत 520 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। ये पैकेज वैलिड रहेगा 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा अभी हाल ही में कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवहुड मिशन के तहत कितने करोड़ के पैकेज की मंजूरी दी है? तो आपका याद रखना है आंसर 520 करोड़ रुपए के। अगला सवाल, किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सोरोनबाई जीनबेकोव स्टेप्स डाउन एमिड पॉलिटिकल क्राइसिस। राजनीतिक अस्थिरता के बीच किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जीनबेकोव ने क्या करा है? इस्तीफा दे दिया है।
ठीक है, अगला सवाल, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल लॉन्चेस स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप। स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप किसने लॉन्च करा है? बस इतना याद रखना है, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। इंडिया एंड कजाकिस्तान हेल्ड वेबिनार फॉर डिफेंस कॉरपोरेशन। रक्षा सहयोग पर भारत और कजाकिस्तान ने क्या करा है? वेबिनार करा है। इसकी थीम क्या थी? मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया कजाकिस्तान डिफेंस कॉरपोरेशन वेबिनार एंड एक्सपो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फिक्की के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे मनाया गया किसके खिलाफ? गरीबी उन्मूलन के खिलाफ। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के खिलाफ एरेडिकेशन, ठीक है, दिन मनाया गया 17 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन पॉवर्टी 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अक्टूबर। इस साल की थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है माइकल ईरानी को। ठीक है, माइकल ईरानी कौन है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से संबंधित है। माइकल ईरानी का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, माइकल ईरानी को क्या करा है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, अंतरिम अध्यक्ष। विशाल शर्मा अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में विशाल शर्मा को भारत का नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। विशाल शर्मा यूनेस्को में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्होंने जावेद अशरफ का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? जावेद अशरफ का स्थान लिया है विशाल शर्मा ने। बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बुक का बस इतना याद रखना नाम, बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर जी के द्वारा। शशि थरूर कौन है? कांग्रेस नेता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहते, पिछले दिनों ही एक बयान के कारण हाईलाइट रहे थे। हमें नहीं मतलब उससे कि क्या बोला था उन्होंने, बस इतना याद रखना हमें कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा, कांग्रेस के लीडर हैं ये। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनाउंस माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। ठीक है, बस क्वेश्चन इतना याद रखना है आपको, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम किसने लॉन्च कराया है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा द्वारा। मनोज सिन्हा कौन है? उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी कौन है? उपराज्यपाल है, उनके द्वारा माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इंडिया रैंक 94 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 94 आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट को कौन करता है? वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा किया जाता है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 वॉज रिलीज्ड, इट इज़ जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 94। ये इंडेक्स है कुछ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? 144 थी। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 117, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स इसमें थी 129। ये याद रखना, कुछ इंडेक्स हैं इंपॉर्टेंट ये। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राज किरण राय elected as a IBA chief. Managing Director and CEO Union Bank of India Rai Kiran Rai ji has elected as the chairman of the Indian Bank Association. IBA के अध्यक्ष बनाए गए हैं 2020-21 के लिए। कौन? राय किरण राय जी। ठीक है, जो रजनीश कुमार जी थे SBI के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद, तो उनकी जगह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन राय किरण राय जी को चेयरमैन बनाया गया है। दिनेश कुमार खारा जो कि अभी चेयरमैन है SBI के, उन्हें डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन का। ये याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आसन कंजर्वेशन रिजर्व बिकम द उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट।
पहली रामसर साइट बन चुकी है कौन? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, बिकम उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट। क्वेश्चन यही आएगा इनमें, आसन कंजर्वेशन रिजर्व पहला का इनमें से किस राज्य का पहला रामसर साइट बन चुकी है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा टू स्पॉन्सर नेशनल रग्बी टीम्स। नेशनल रग्बी टीम्स को ओडिशा क्या करेगा? स्पॉन्सर करेगा। द ओडिशा गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर द इंडियन रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 years टिल 2023। 2023 तक ओडिशा क्या करेगा? नेशनल रग्बी टीम्स को स्पॉन्सर करेगा। यूनियन हेल्थ में इंडिया एम्स टू अचीव ट्रांस फैट फ्री स्टेटस बाय 2022। भारत ने एक टारगेट रखा है कि उसे क्या होना है? ट्रांस फैट फ्री होना है। कब तक? 2022 तक। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन said on 16 October 2020 that aims of make the government is to make India trans fat free by 2022। उन्होंने ये बोला है कि हमने लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि हमारे देश को जो है ट्रांस फैट फ्री होना पड़ेगा 2022 तक। इट इज़ इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ अ न्यू इंडिया ऑन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका मिशन है एक न्यू इंडिया बनाने का 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की जो 75वीं वर्षगांठ होगी आज़ादी की तब तक, ठीक है। इफ़ दिस अचीव, यदि हम अचीव करते हैं इसे, इंडिया वुड बी अ ईयर अहेड ऑफ टारगेट एज सेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के 1 साल पहले भारत अचीव कर लेगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भारत ने ट्रांस फैट फ्री स्टेटस का टारगेट कब तक रखा? 2022 तक। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब तक रखा? 2023 तक। ये कुछ टारगेट है भारत के। उत्कर्ष रोड प्लान बाय RBI 2022। डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को दुगना करना 2022 तक। हर घर जल 2024। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय, ये सेम ही है तो 2024। टीबी को एलिमिनेट करना 2025। टू जनरेट सोलर पावर 500 मेगावाट 2030। अचीव ज़ीरो रोड एक्सीडेंट, है ना, फैटालिटीज़, तो 2030 तक ये भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति। मिशन शक्ति अभी हाल ही में किस राज्य ने शुरू करा है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश ने। बस क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मिशन शक्ति किसने लॉन्च करा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। न्यूजीलैंड PM जेसिंडा आर्डन विन सेकंड टर्म्स लैंडस्लाइड री इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर यानी कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में जेसिंडा आर्डन ने, उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी कि एक तरफा जीत हासिल करी है और वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन चुकी है फिर एक बार, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन सेंटर लेफ्ट द लेबर पार्टी वॉन द लैंडस्लाइड विक्ट्री इन अ न्यूजीलैंड जनरल इलेक्शन ऑन 17 October एज अ वोटर्स रिवॉर्डेड हर फॉर अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स टू कोविड-19। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उनका कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में, कोरोना वायरस के लड़ने के, जिसके बाद उन्होंने फिर एक बार प्रधानमंत्री बनी है वो न्यूजीलैंड की, उनकी लेबर पार्टी जीत हासिल करी है। लेबर वॉज वॉन ऑन ट्रैक टू 64 ऑफ द 126 इन द कंट्रीज यूनिकैमरल पार्लियामेंट, द हाइएस्ट बाय एनी पार्टी सिंस न्यूजीलैंड एडॉप्टेड अ प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम इन 1996। 24 साल के बाद पहली बार किसी पार्टी को वहाँ पे बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर आई है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। जैसे भारत में 2014 में आई थी, 30 साल बाद, 1984 के बाद 2014 में 30 साल बाद एक पार्टी को बहुमत मिला था। उसके बाद 2019 में फिर एक पार्टी को बहुमत मिला। उसी तरह 24 साल बाद न्यूजीलैंड में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और वो है जेसिंडा आर्डन की पार्टी लेबर, ठीक है। तो यही याद रखना है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन चुनी गई हैं? तो आपको याद रखना जेसिंडा आर्डन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट 102 मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट कमेटी की 102वीं बैठक में हिस्सा लिया। क्वेश्चन ये आएगा, वर्ल्ड बैंक की 102वीं जो डेवलपमेंट कमेटी की बैठक थी उसमें किसने हिस्सा लिया था? तो आंसर आपको याद रखना है निर्मला सीतारमन ने। तो दोस्तों
ये था आज का सेशन। इसमें हमने 16 से 18 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की डिस्कशन की, साथ में नेशनल इनकम पे हमने एमसीक्यू लिए, साथ में बजट पे भी हमने यहाँ पे एमसीक्यू लिए। अब हम कल बात करेंगे जुलाई के 200 प्लस एमसीक्यू का पहला सेशन में लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।